Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is heat and it is in physics. In the last video lecture, we completed two topics that is conduction and convection and started one new topic that is radiation. We have completed the introduction of radiation. So let's continue our topic which is radiation. As you can see in this GIF, you can see that the heat and light both will comes from the sun up to the solar system. It is all completely traveling into the solar system and reaches to respected planets. So the distance between the sun and the earth is very high in terms of light years. Now what is light year, that we will going to learn in future. So very vast difference is there, and there is nothing, means there is space between earth and the sun. Still the heat waves and the light waves transfer from the sun and reaches to the earth. Okay, so how it is possible? It is possible by radiation. What is radiation? Radiation means the transfer of heat without any material medium is known as radiation. Okay, so now how they can able to transmit the heat? Reason is very simple, that they are transmitting by radiating energy. Now what is radiant energy? Radiant energy मतलब एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है वो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके अर्थ के ऊपर पहुंचती है एंड वी कैन गेट हीट फ्रॉम द सन. सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. ओके, now as I said in the last video lecture that every body consists some sort of heat. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर some sort of heat है वो stored होती है. Okay, and that is depending on respected object के कितनी stored है, कितनी वो absorb कर सकती है, कितनी वो वापस भेज सकती है. Okay, second statement is written, radiation is emitted by all the bodies. Radiation मतलब क्या? Radiation matlab electromagnetic waves. So it is a kind of energy. The electromagnetic waves is emitted. Emit matlab to produce and spread. So कोई हर एक बॉडी जो है वो some sort of electromagnetic waves है वो रिलीज कर सकती है और शुड ऐसे स्प्रेड कर सकती है. Okay. Next statement is, when the radiant energy falls on any body, it partly transmitted and partly absorbed. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे रेडियंट एनर्जी मतलब आपको क्या अज्यूम करना है. रेडियंट एनर्जी मतलब हीट के जो वेव्स है, हीट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैं उसकी बात कर रही हूँ. सो हीट जो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है वो. तो जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट है वो वेव्स के फॉर्म में फॉल डाउन होते हैं, तो एट दैट टाइम वो ऑब्जेक्ट सम सॉर्ट ऑफ हीट को वो क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड सम सॉर्ट ऑफ हीट को वो क्या कर देता है, वापस भेज देता है और शुड आई से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. ओके, नाउ to understand this three statement, let's perform one activity. Let me explain you what you have to do in this activity. You have some beverages at your home. मतलब आप कभी कभार कोल्ड ड्रिंक्स है वो कंज्यूम करते हो छोटे छोटे एल्यूमिनियम के कैंस में, है ना. सो वी हैव टू टेक दैट 2 एल्यूमिनियम कैंस. ओके, अब we have to paint this 2 cans, though it is already painted, but हमें क्या करना है, हमारी एक्टिविटी के लिए उसको कस्टम पेंटिंग करनी है. एक कैन ले लो एंड उसको कंप्लीटली डार्क ब्लैक कलर कर दो और उसको सूखने के लिए साइड पे रख दो. और दूसरा कैन है उसके ऊपर कोई भी व्हाइट कलर या येलो कलर, दोनों में से कोई भी एक, मतलब इन शॉर्ट कंप्लीटली लाइट कलर होना चाहिए. सो उससे पेंट कर दो और उसको सूखने के लिए रख दो. Once this all paint is getting dry, okay, then we will going to perform one activity. अब हमें क्या करना है, दोनों कैंस के अंदर
सेम अमाउंट ऑफ वाटर है वो फील करना है। मतलब कैंस के अंदर अगर आप 100 ml पानी लेते हो तो दोनों में 100 ml पानी ले लो और उसके अंदर छोटा सा जो होल होता है उसके अंदर डाल दो थर्मोमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम टाइम पे सेम टाइम के लिए गर्म करना है। क्या बोला मैंने, सेम टाइम पे, मतलब अभी स्टार्ट किया है तो दोनों को हीट करना, दोनों को साथ में हीट करना और दोनों को सेम टाइम के लिए हीट करना, अप्रोक्सीमेटली सपोज 5 मिनट। सो 5 मिनट के लिए आप दोनों कैन को गर्म कर रहे हो। ओके, सो उसके अंदर का पानी भी डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन मेथड हीट इज बीन ट्रांसफर एंड उसके अंदर वो भी गर्म हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, ओके, एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद दोनों गैस को बंद कर दो एंड दोनों थर्मोमीटर को बाहर निकालो। तो दोनों थर्मोमीटर को बाहर निकालने से आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी डार्क कलर और शुड आई से ब्लैक कलर का कैन था उसका पानी का टेम्परेचर लाइट कलर और शुड आई से व्हाइट कलर के कैन के पानी के टेम्परेचर के कंपेयर में कैसा था, ज्यादा है। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करे या उसको रिफ्लेक्ट बैक करे वो ऑब्जेक्ट की दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी, पहली चीज कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्या कि जितना ज्यादा डार्क कलर होगा वो उतनी ज्यादा हीट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब गेन करता है। इसीलिए पानी का टेम्परेचर ब्लैक वाले कंटेनर का ज्यादा था क्योंकि वो काले रंग का था। काले रंग की चीजें हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। जब भी आप गर्मी में बाई चांस अगर काले कपड़े पहन के निकलोगे, ब्लैक सूट पहन के भरे बाजार में निकलोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट हीट हॉट, यू विल डेफिनेटली फील हॉट कि भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ऐसा। लेकिन उसी की कंपेयर में अगर हम लोग गर्मी के मौसम में अगर हमने लाइट कपड़े पहने हैं, मतलब व्हाइट कलर के या कोई भी लाइट शेड के कपड़े पहने हैं एंड कॉटन के कपड़े पहने हैं तो हमें इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी जितनी वो ब्लैक सूट में लगती है। क्यों ऐसा, क्योंकि ब्लैक कलर है वो डार्क कलर है, डार्क कलर हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने अंदर गेन कर लेता है। ओके, एंड इसी की वजह से ब्लैक कलर के कंटेनर का पानी का टेम्परेचर कैसा था, ज्यादा था कंपेयर टू द लाइट वन। ओके, सो एक चीज हमने समझी कि अगर कोई चीज के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करवानी हो तो हमें कैसा कलर पसंद करना चाहिए, डार्क कलर। सो डिपेंड ऑन द कलर। सेकेंड चीज क्या डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द सरफेस। कोई भी सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी उसमें ज्यादा कंज्यूम होगी। एंड कोई भी चीज अगर बहुत स्मूथ एंड शाइनी है तो उसमें हीट है वो कम एब्सॉर्ब होगी। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज गर्मी का मौसम है और आपने बाहर एक तरफ आईना रखा है, मिरर रखा है और दूसरी तरफ एक रफ टाइल्स रखी है, रफ पत्थर रखा है। दोनों को 10 मिनट के लिए बाहर रखा और अंदर ले लिया और उसका टेम्परेचर जब मेजर करोगे या सिंपल आप उसको सिंपल टच करोगे सो यू विल गेट टू नो दैट जो पत्थर है वो कैसा है, रफ सरफेस वाला है, तो वो ज्यादा गर्म लगेगा कंपेयर टू द मिरर। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि सरफेस कैसी है, स्मूथ है। सो स्मूथ सरफेस की वजह से हीट है वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक, वापस वो भेज देगा एटमोस्फियर में और वो कम गर्म होगा। लेकिन रफ सरफेस के अंदर क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को वो एब्सॉर्ब करेगा। सो ये एक्टिविटीज हमें पता चलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर सम सॉर्ट ऑफ हीट प्रेजेंट होती है एंड डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के सरफेस एंड कलर के ऊपर कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट है वो एब्सॉर्ब करेगा एंड कितनी अमाउंट ऑफ हीट है उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ओके, कभी भी आपने कोई भी घर पूरा काले कलर का पेंट हुआ देखा है, स्पेशली पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी देखा है आपने? नो, मोस्टली कलर कैसे होंगे, लाइट कलर होंगे। क्यों ऐसा, उसका रीजन है कि
हम जिस जगह पे रहते हैं, इंडिया हमारा साउथ एशिया में सिचुएटेड है एंड साउथ एशिया के अंदर टेम्परेचर मोस्टली इन बिटवीन 30 to 45 के बीच में रहता है. सो गर्मी ज्यादा है. अगर हम घर को पूरे ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो दिन के टाइम में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और आपका घर घर नहीं बल्कि भट्टी बन जाएगा एंड आप उसके अंदर रोस्ट हो जाओगे. यस और नो. सो दैट्स व्हाई हमारे सारे घर जो होते हैं वो मोस्टली व्हाइट कलर या लाइट कलर से रंगे हुए होते हैं. नेक्स्ट चीज, व्हाइट एंड लाइट कलर क्लोथ्स आर कंफर्टेबल इन समर सीजन. और उसका एकदम उल्टा कि ब्लैक कलर के कपड़े विंटर सीजन के अंदर कंफर्टेबल है. लेट्स अंडरस्टैंड. In the summer season, mostly the temperature is between 35 to 45 degrees Celsius and we feel extreme hot. Okay, so at that time अगर लाइट कपड़े पहनेंगे तो लाइट कपड़े क्या करेंगे, हीट को वापस भेज देंगे, मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे. 100% नहीं, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ, इसलिए हमें उसमें कम गर्मी लगेगी. लेकिन उसी की जगह पे अगर हमने सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल फाइबर एज वेल एज ऊपर से ब्लैक कलर पहना हो, सो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा. एंड वो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से एक तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, ऊपर से कोट पहना है वो भी ब्लैक कलर का. सो व्हाट विल हैपन, आप रोस्ट हो जाओगे, आप गर्म हो जाओगे. यस और नो. ओके, सो इसलिए विंटर सीजन में डार्क कलर के कपड़े एंड समर सीजन में लाइट कलर के कपड़े कैसे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं. द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन इज सोलर कुकर. सोलर कुकर क्या है, I will show you the photo of solar cooker in the next video and also showing you how it exactly works. ओके, वो छोटा सा ब्रीफ केस जैसा आता है. ब्रीफ केस तो पता है ना आपको, वो ब्रीफ केस का जो ओपनिंग होता है उसके अंदर एक मिरर है वो लगा हुआ होता है. एंड वो ब्रीफ केस के अंदर जो अंदर की चीजें रखने के लिए जो पोर्शन होता है वो कंप्लीटली ब्लैक कलर होता है. और उसके अंदर के कंटेनर छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज को रोस्ट कर सके, ड्राई कर सके या बॉईल कर सके, तो उसके लिए छोटे छोटे कंटेनर्स दिए जाते हैं. वो कंटेनर्स भी कैसे होते हैं, काले कलर के होते हैं. अब क्यों, सोलर कुकर का काम क्या है, कुकर का काम क्या होता है, खाने को पकाने का. बस सोलर कुकर मतलब क्या, सोलर एनर्जी से हम हमारा खाना है वो कुक करेंगे. ओके, सो अगर वो डिब्बे अगर मैं व्हाइट कलर के कर दूंगी तो क्या उसके अंदर का रखा हुआ खाना अच्छे से रोस्ट या कुक होगा, नो. क्यों, क्योंकि वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड ज्यादा हीट को वापस भेज देगा, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करेगा. सो खाना है वो अच्छे से कुक नहीं होगा. बट उसी की जगह पे हमारे अगर कंटेनर्स ब्लैक कलर के हैं, ब्रीफ केस की अंदर की सरफेस ब्लैक कलर की है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी से हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा एंड आपके खाने को प्रॉपरली कुक करेगा. Okay, so this is heat radiation. I hope you will get it. On this note, the chapter is completed, which is good news for you, right? Okay, in the next video, I will just recapitulate the whole chapter and then we'll move for the notes and exercise explanation. Till then, just keep smiling, explore yourself, and have a nice day. Bye.